تو ہاں، ہم نے سمجھا ہے کہ جو اردو زبان ہے یہ 3 زبانوں سے مل کر بنی ہے، جس میں ہم نے دیکھا عربی، فارسی اور سنسکرت۔ اب اگر حروف کی بات کی جائے، ان حروف کو غور سے دیکھیے گا اور اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہو، جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چیم، ہائے، کھائے، دال، ڈال، زال، رے، ڈے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئے، ظوئے، عین، غین، فے، قاف، کیف، غاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، یا لقڑی اس کو ہم کہتے ہیں، اور بولیے۔ اب ان کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ عربی یا حروف تازی، اب کون سے عربی حروف ہے یا حروف تازی، دوسرا نام اس کا حروف تازی ہے۔ غور سے دیکھے گا، حروف تازی یا عربی، یہ خاص عربی حروف ہے۔ جیسے اردو میں جو عربی الفاظ مشتمل ہیں یہ ان الفاظ میں آتے ہیں، لیکن خالص فارسی الفاظ میں نہیں آتے۔ وہ یہ ہیں، دیکھو کیا ہے، اس سے ہم سمجھتے کہ اردو میں جو عربی الفاظ مشتمل ہیں یہ ان الفاظ میں آتے ہیں، لیکن خالص فارسی الفاظ میں نہیں آتے۔ فارسی میں یہ نہیں آتے، فارسی الفاظ میں یہ نہیں آتے، صرف آتے کس میں؟ عربی اور اردو میں، عربی اور اردو میں۔ اب کون سے لفظ ہیں، کون سے حرف ہیں وہ درج ذیل ہے۔ ایک سے ہائی، زال، صاد، ضاد، طوئے، ظوئے، عین، قاف۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ ٹوٹل جو ہے، کل جو ہے یہ 9 حروف ایسے ہیں جو یہ خاص عربی حروف ہے، جو عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی آتے ہیں۔ عربی الفاظ مشتمل ہیں اور یہ الفاظ جو ہے یہ اردو میں موجود ہیں، یہ ان الفاظ میں آتے ہیں، لیکن خالص فارسی الفاظ میں نہیں آتے۔ فارسی الفاظ میں یہ موجود نہیں ہے، فارسی الفاظ میں یہ نہیں آتے۔ تو اس کے بعد عربی کے بعد حروف فارسی جو ہے، یا اس کا دوسرا نام ہے حروف عجمی، یہ حروف فارسی اور عربی دونوں زبانوں کے الفاظ میں آتے ہیں۔ یہ فارسی کے الفاظ میں بھی آتے ہیں، فارسی زبان کے الفاظ میں بھی آتے ہیں، اور یہ عربی زبان کے الفاظ میں بھی آتے ہیں، یعنی دونوں زبانوں کے الفاظ میں یہ آتے ہیں۔ مگر سے جو ہے یہ خاص یاد رکھے گا، سے جو ہے یہ خاص فارسی حرف ہے۔ سے جو ہے یہ خاص فارسی حرف ہے، اور جو ہندی اور عربی کے الفاظ میں نہیں آتا، نہ یہ ہندی میں آتا ہے اور نہ یہ عربی کے الفاظ میں آتا ہے، نہ یہ ہندی زبان کے الفاظوں میں آتا ہے اور نہ یہ عربی زبان کے الفاظوں میں آتا ہے۔ سے کیونکہ یہ خاص ہے، یہ خاص حرف ہے کس کا؟ کس زبان کا؟ فارسی کا۔ اور مگر اردو میں انگریزی کے الفاظ میں بلا تکلف استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں انگریزی کے الفاظ، جو انگریزی الفاظ ہوتے ہیں اردو میں، جو بھی انگلش ورڈز ہوتے ہیں، یہ اردو میں انگریزی الفاظ جو بھی ہوتے ہیں ان الفاظ میں بلا تکلف یہ استعمال ہوتا ہے سے۔ جیسے اب سمجھتے ہیں حروف فارسی کون سے حرف ہے، یہاں پہچان کیجئے گا۔ ایک ہے زے، یہاں پہ کہا ہے زے، یہ والا، یہ ہے فارسی۔ اس کے بعد ہے فے،
कहाँ पे एफ है, ये वाला, ये भी है फारसी। उसके बाद है गैन, गैन कहाँ है, गैन भी ये भी फारसी, ये भी फारसी। उसके बाद है खाई, ये इसको भी लिखूंगा मैं फारसी। उसके बाद है से, अभी मैंने से का कहा है, से ये खास हर्फ है फारसी जबान का, से खास हर्फ है फारसी जबान का, जो ना हिंदी में, हिंदी जबान के अल्फाज में इस्तेमाल होता है और ना अरबी जबान के अल्फाज, ये वाला फारसी। इसके अलावा चीम, ये ये भी है फारसी। इसके अलावा गाफ, ये वाला, ये भी है फारसी। अब कितने आए फारसी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हरूफ ऐसे हैं जो फारसी के, 7 हरूफ ऐसे हैं जो फारसी के हैं। इनमें से एक खास है, वो से है, इसको नोट, ये याद रखेगा और नोट डाउन करना, और अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेना। अब हमने देखा है दो जबानों के हरूफ। अब संस्कृत हरूफ जो है, संस्कृत, ये खास संस्कृत के हरूफ हैं जिन्हें हिंदी हरूफ भी कहा जाता है, जबकि हिंदी जबान उर्दू के बतन से जन्मी है। गारिज ये वो हरूफ हैं जो अरबी और फारसी के अल्फाज में नहीं आते। ये हरूफ जो है ना अरबी के अल्फाज में आते हैं, अरबी के ज़बान के अल्फाज में आते हैं, और ना ये फारसी के ज़बान, जो फारसी के ज़बान है, फारसी के अल्फाजों में नहीं आते। कौन, ये संस्कृत हरूफ। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये हरूफ जो है, इनकी शक्ल सूरत जो है वो मिलती जुलती, वो एक जैसी, जैसे जीम चीम हाय खाय, ये जो है इनकी शक्ल सूरत मिलती जुलती है आपस में। अब सिर्फ फर्क क्या है, वो नुक्ते का फर्क है। किसी में एक नुक्ता है, जीम में 3 नुक्ते हैं, हाई के ऊपर एक नुक्ता है, हाई पर, हाई का कोई नुक्ता ही नहीं है। अब जो ये आपस में मिलते हैं, इन हरूफ को क्या कहा जाता है, इन हरूफ को कहा जाता है, इन हरूफ को कहा जाता है मुतशाबह, यानी मुशाबत। ये एक जैसे मुशाबत रखते हैं, एक जैसे होते हैं। अब सिर्फ फर्क है नुक्ते का। इसी तरह यहाँ पे एलिफ को काटो, एलिफ के बगैर अगर देखा जाएगा, बे, पे, ते, ते, से, ये हरूफ जो है ये आपस में मुशाबत रखते हैं, ये एक जैसे हरूफ है। अब फर्क नुक्ते का है, और यहाँ पे तोई, तोई की अलामत है, तोई का निशान, इनको भी आगे हम देखिए। इसी तरह यहाँ पे दाल, दाल, जा, रे, जे, जे, से, इनकी भी मुशाबत एक जैसी है ना। इसी तरह यहाँ पे सीन, शीन, स्वाद, जात, इनकी मुशाबत एक जैसी है। तोई, जोई, इनकी मुशाबत एक जैसी। आइन, गैन आपस में मिलते हैं। फे, काफ, कीफ, गाफ आपस में मिलते हैं। लाम अलग है, मीम, नून, वाव है, फिर ये इनकी मुशाबत जो है वो एक जैसी नहीं है। यानी जितने हरूफ, जिन हरूफ की आपस में मुशाबत पाई जाती है, जो यकसा हैं, जो एक जैसे, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, उनको हम कहते हैं मुतशाबह। और इसके अलावा बाकी जो हरूफ बचे हैं, इनका भी हम देखेंगे।
तो हमने देखा कि जिनकी शक्ल सूरत एक जैसी है, जो आपस में मुशाबत रखते हैं, वो बे, पे, ते, से, इसी तरह जीम, चीम, हाय, खाय, दाल, दाल, जार, रे, दे, से, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, त्वाई, ज्वाई, है ना, बाकी जितने भी है। उसके बाद हुरूफ मनकूता। हुरूफ मनकूता का मतलब होता है ऐसे हुरूफ जिनमें नुक्ते पाए जाते, जिनमें नुक्ते पाए जाते। जैसे हमारे पास अगर बे है, यहां मैं लिखूंगा डिफिनेशन हुरूफ मनकूता, ऐसे हुरूफ ऐसे हुरूफ जिनमें नुक्ते पाए जाते हैं, ऐसे हुरूफ को हम हुरूफ मनकूता कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दूंगा, जैसे बे है, पे है, ते है, फिर से है, फिर जीम है, फिर चीम है, फिर खाई है, फिर जाल है, फिर जे है, फिर से है, शीन, ज़ाद, ज़ाई, इसी तरह गैन, इसी तरह फे, काफ, नून, बस इतने ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये हरूफ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं हरूफ मनकूता। मनकूता का मतलब है ऐसे हरूफ जिन हरूफ हरूफ के बीच में कोई नुक्ता होगा, या ऊपर नुक्ता होगा, या नीचे नुक्ता होगा, है ना। जैसे बे के नीचे नुक्ता है, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसी तरह चीम के बीच में 3 नुक्ते हैं, है ना। जो ये नुक्ते होते हैं, जहां भी नुक्ता होगा, इनको हम कहते हैं हरूफ मनकूता। इसी तरह हरूफ गैर मनकूता यानी इसके बरकस का मतलब ये है कि ऐसे हरूफ जिनमें कोई नुक्ता नहीं पाया जाएगा, जिनमें कोई नुक्ता नहीं होगा। जैसे अब इसकी डिफिनीशन भी मैं लिखूंगा, को भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा अच्छे से। हरूफ गैर मनकूता, ऐसे हरूफ जिनमें नुक्ते नहीं पाए जाते हैं, उससे हम हरूफ गैर मनकूता कहते हैं। जैसे अब खुद देखेंगे कि कौन सा हर्फ ऐसा है जहां नुक्ता मौजूद नहीं है। जैसे हाई, जैसे रे, दाल, जैसे रे, इसी तरह स्वाद, इसी तरह तोई, इसी तरह ऐन, इसी तरह कीफ, इसी तरह गाफ, लाम, मीम, वाव, हाँ, हा, हमजा, या।
تو ये हरूफ ऐसे हैं जो गैर मनकुता कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई नुक्ता मौजूद नहीं है। तो हमने देखा है हरूफ मनकुता वो हरूफ है जो नुक्ते वाले हरूफ होते हैं, और मन हरूफ गैर मनकुता वो हरूफ हैं जिनमें नुक्ते नहीं पाए जाते, जिनमें नुक्ते मौजूद नहीं होते। इसके अलावा अलावा हरूफ सकीला, हरूफ सकीला का मतलब ये है कि ऐसे हरूफ जिनमें ता की निशानी पाई जाती है, तोई की निशानी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे जो टे है, टे के ऊपर ये तोई का निशान है, तोई की अलामत है। इस वाले हुर्फ को हुरूफ सकीला कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पे ड, इसको हुरूफ सकीला कहा जाता है। इसी तरह जो भी तोई की सूरत में हुर्फ होगा तो उसको हम हुरूफ सकीला कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई सवाल है इस जो ये लेक्चर हुआ है इस लेक्चर के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर सवाल कीजिएगा। मैं आपका मुंतज़िर हूँ, मैं जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।